Hello and welcome to the class. In this class, we will learn about word of computers. इस क्लास में हम पढ़ेंगे word of computers के बारे में. My learning goals: generation of computer languages, language translator, computer software and its types, number system, conversation between number systems, binary arithmetic, encoding schemes. Let's start. Generation of computer languages. The development of computer languages is mainly classified into 5 generation. हमने जो कंप्यूटर लैंग्वेज का जनरेशन है उसको 5 जनरेशन में बांट दिया है. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस और LLL. LLL are those which are either in binary form or very close to it. ये वो हैं जो बाइनरी फॉर्म में होते हैं या फिर उसके बहुत क्लोज होते हैं. There are two type of low level language, machine language and assembly language. Machine language or first generation language. It is most basic and lowest level of computer language. ये सबसे ज़्यादा basic level of computer language होती है. It consists of zeros and one. इसमें zeros and one होते हैं जिनको हम binary digits भी बोलते हैं. Assembly language or second generation language. It has same structure or set of commands as that of machine language. इसमें same structure या set of command होता है जैसे कि machine language में. However, it enables user to use commands names called mnemonics in place of zeros and ones. जबकि ये mnemonics zeros and one की तरह हम use कर सकते हैं. जैसे कि add a byte. Add a to byte would result in a. ADDC a byte. Add with carry. SUBB a byte. Subtract with borrow. INC A, increment A. INC byte, increment byte memory. High level language or third generation language. High level language or HHL are closer to human written language. ये closer होते हैं human written language के. The first ever high level language was designed in 1950s. 1950s में सबसे पहले HHL डेवलप हुई थी जैसे कि Fortran, बेसिक, कोबोल, C++, C#, जावा, प्रोलोग एंड LISP. Fourth language generations. The fourth generation language are used to develop software. ये यूज होती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि PL/SQL, FoxPro, Stata, Oracle, and Visual Basic. Fifth generation languages, FGLs. The fifth generation languages are also known as artificial generation languages. In future, once programmed, these languages will make computers solve a given problem without a programmer. फ्यूचर में एक बार अगर हमने प्रोग्राम दे दिया कंप्यूटर को तो कंप्यूटर विदाउट प्रोग्रामर भी सब चीजें परफॉर्म कर पाएगा. An example of this is robot. Some popular languages being worked upon are कुछ popular languages जो FGLs 5GLs में आती हैं वो है Mercury, OPS5 and Prolog. Language translator. A program written in high language cannot be executed directly by computer. जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाता है. इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर. Our translator debugs the program and help it in execution. एक ट्रांसलेटर डिबग करता है प्रोग्राम को और हेल्प करता है उसके एग्जीक्यूशन में. There are two type of translator. First, compiler and second, interpreter. Compiler. A compiler search for errors in the entire program in one go and list them. कंप्यूटर सर्च करता है एरर के लिए पूरे प्रोग्राम में एक बारी में और उसकी हमें लिस्ट दे देता है. It converts high level language program code into machine code before executing them. ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलता है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले. इंटरप्रिटेटर. एन इंटरप्रिटेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन और चेक करता है एरर्स. इफ एन एरर इज फाउंड इट स्टॉप्स. अगर कोई एरर फाउंड होता है तो ये रुक जाता है. लेट्स लुक एट डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर. कंपाइलर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम whereas interpreter spends less time. Compiler translates the whole program. Interpreter translates statement wise. Generates error message after scanning the whole program. Debugging is difficult.
continues translating the program until first error, requires more memory, interpreter requires less memory. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट टाइप्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और उसके कुछ टाइप. सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैव द इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ, व्हेन एंड व्हाट ऑफ अ कंप्यूटर हैज टू डू. ये डिफाइन करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है. सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस. इसको हम कंप्यूटर की कोई भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट्स होते हैं: ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं: जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट्स लर्न अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये डेवलप होता है ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का हार्डवेयर. इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द एप्लीकेशन मशीन. ये एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जिससे कि हम एप्लीकेशन को चला पाए. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम तीन पार्ट्स में डिफाइन करते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. लेट्स लुक एट ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is the software that controls and manages the working of a computer. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करता है. विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉइड एंड मैक आर सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. दे परफॉर्म टास्क सच एज कंट्रोलिंग द मेमोरी एंड मैनेजिंग डिस्क स्पेस. ये कंट्रोल करते हैं टास्क जैसे कि मेमोरी को और मैनेज करना डिस्क की स्पेस को. We cannot start or boot a computer in presence of an operating system. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं है तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी लोडेड इनटू अ सिस्टम बिफोर रनिंग अनदर सॉफ्टवेयर ऑन सिस्टम. हमारे सिस्टम पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कोई भी और सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज computer how to communicate with other software objects like printer, disk drive, etc. attached to computer. लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझ सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कोड इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन. ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर कोड को जीरो और वन की फॉर्म में रख पाए, इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्ट करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं या तो हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेजेस में. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Utility software is designed to perform a specific task related to operation of software. ये डिजाइन होता है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कि रिलेट करता है ऑपरेशन से कंप्यूटर के. These are important as they are responsible for proper functioning of a computer system. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन से रिलेट करता है कंप्यूटर सिस्टम के. It is generally used to complete a disk checkup. डिस्क का चेकअप यूज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए डिस्क को या कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट के फाइल को. डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सिस्टम रीस्टोर, एंटीवायरस एंड डिस्क क्लीनअप आर सम कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल. डिस्क डिफ्रेगमेंटर. Disk defragmenter is a tool that help us organize and optimize storage on our computer. ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में और ऑप्टिमाइज करने में स्टोरेज को हमारे कंप्यूटर पे. Over time, as files are added, deleted and modified, they can become some scattered in different part of storage. जैसे जैसे फाइल्स ऐड होती जाती हैं, डिलीट होती है, मॉडिफाई होती हैं, ये स्कैटर हो सकती हैं. Disk decompresser rearranges these scattered pieces, making a computer run more efficiently by improving access to files. ये अरेंज करके हमारे पीसेस को एफिशिएंसी बढ़ा देता है हमारे कंप्यूटर की. सिस्टम रीस्टोर. System restore is a feature on a computer that allows us to revert its setting and system files to previous point in time. इसकी मदद से हम अपनी सेटिंग्स को रिवर्स करके जैसा हमारा कंप्यूटर पहला था हम वैसे कर सकते हैं. Disk cleanup. This application scans for the temporary files or files of a specific type as specified by the user on selected drives and removes them. ये हमारी टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करने में मदद करता है. हम अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके फ्री कर सकते हैं स्पेस को. टू यूटिलाइज दिस प्रोग्राम सिंपली एंटर डिस्क क्लीनअप इन सर्च बॉक्स. हमें इसके लिए बस हमें डिस्क क्लीनअप लिखना है सर्च बॉक्स में. एंटीवायरस. अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन इंटरफेयर विद रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ आवर कंप्यूटर, पोटेंशियली कॉजिंग अ स्लो डाउन और इन सम केसेस अ सिस्टम क्रैश.
ये इंटरफेयर कर सकता है रेगुलर ऑपरेशंस में हमारे कंप्यूटर के, जो कि हमारे कंप्यूटर को स्लो डाउन कर सकता है और हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। टू एलिमिनेट सच थ्रेड्स, ऐसे थ्रेड्स को एलिमिनेट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ एंटीवायरस प्रोग्राम्स। ये नेसेसरी हो जाता है हम एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करें। कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं नॉर्टन, क्विक हील, एवीजी, अवीरा एंड मैकेफी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। A computer uses application software to do tasks given by the user. ये यूजर के द्वारा दिए गए टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट रिटन फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। ये टेलर्ड नहीं होता है किसी भी बिजनेस या फिर इंडस्ट्री के लिए। इट कैन बी यूज फॉर कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल पर्पज। हम इसको कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज सेम फॉर ऑल यूजर हु ऑपरेट ऑन दैट सॉफ्टवेयर। ये हर यूजर के लिए सेम होता है जो उस पर ऑपरेट करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसको एडिट करने के लिए यूज होता है। प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू क्रिएट एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये बनाने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन और प्रेजेंटेशंस को यूज होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू स्टोर, एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। इसको हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को रोज और कॉलम्स में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और DBMS इज यूज टू क्रिएट एंड हैंडल डेटाबेसेस। इसको हम यूज करते हैं क्रिएट और हैंडल करने के लिए डेटाबेस। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर ग्राफिक्स एंड ब्लूप्रिंट्स ऑफ डिजाइन। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर DTP, इट इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर एंड सो ऑन। ये हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर और भी चीजें। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, special purpose or customized software is specially designed to fulfill the requirements of a particular individual or a company. ये कस्टमाइज होता है फुलफिल करने के लिए रिक्वायर किसी भी बिजनेस या पर्टिकुलर कंपनी की। एन इंडिविजुअल और कंपनी मे नीड अ सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट और देयर पर्पस मे नॉट बी सॉल्व बाय व्हाट इज अवेलेबल। एक इंडिविजुअल कंपनी या फिर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं भी हो सकता है मार्केट में उनकी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए। Some example of customized software are, कुछ एग्जाम्पल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के हैं पेरोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट एंड सो ऑन। नंबर सिस्टम, a number system is a way to represent numbers such as a number of students in school or money in bank। ये एक तरीका है नंबर रिप्रेजेंट करने का किसी भी चीज का। The total number of digit uses number system is called its base और radius। जितनी हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज करते हैं नंबर सिस्टम में उसको हम बोलते हैं बेस या फिर रेडिक्स। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। लेट्स लर्न अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम। द वर्ड डेसिमल नंबर सिस्टम इट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसिम मीनिंग टेनिंग। ये लैटिन वर्ड से डिसाइड है जिसको हम बोलते हैं डेसिम, जिसका मतलब होता है 10। द बेस 10 is used 10 digits from 0 to 9. In a decimal number system, the successive position to the left of decimal point represent ones, tens, hundred, thousands and so on. ये लफ्ज में डिफाइन करता है हमारी नंबर जैसे कि 1, फिर tens, फिर thousands, फिर hundreds and so on. Each position represent a specific power to the base. हर पोजीशन एक स्पेसिफिक पावर डिफाइन करती है बेस से। देखते हैं कि एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर 2, 3, 4, 5 कंसिस्ट ऑफ अ डिजिट 5 इन वन प्लेस। इसमें वंस पे हमारा 5 है, 4 हमारा टेंस प्लेस पर है, 3 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर है और 2 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर है। इट कैन बी रिटन एज 2 into 1000 plus 3 into 100 plus 4 into 10 plus 5 into 1. Thus, we can say that value of each digit in a number depends on following: the base of the number system, the face value of digit, the position of digit in the number. Binary number system. The word binary is derived from Latin word mean bini, means double. The number system is also known as base 2 number system. The digits 0 and 1 are known as binary digits or bits.
इसको हम बाइनरी डिजिट्स और बिट्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर वुड लुक लाइक 100 base to power 2. In binary, the places value move from right to left for successive power of 2. ये right से left move होती है 2 की successive power के लिए, जैसे कि 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 and so on. For example, in a 4-digit binary number, the binary places from left to right are 1, 2, 3, 4 and 8. We can say that the value of each digit in a number can be determined by, हम बोल सकते हैं वैल्यू हर डिजिट की नंबर में डिटरमाइन हो सकती है डिजिट से, पोजीशन ऑफ डिजिट से और बेस नंबर सिस्टम के. ऑक्टल नंबर सिस्टम. द वर्ड ऑक्टल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स ऑक्टो. ऑक्टो मीन्स 8. Octal number system has only 8 digits from 0 to 7. The number represented are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The base of an octal number is 8 because it has only 8 digits. For example, octal number representation example is 378, base is 8. Hexadecimal number. Hexadecimal number is derived from Greek word means hex. Hex means 6 and decim means 10. So hexadecimal number has 6 and 10, which is 16 numbers. We derive first 10 numbers from the values 0 to 9 and the next 6 from alphabet A to F. A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15. The base of hexadecimal number system is 16. जो base होता है hexadecimal number system का वो होता है 16. Because it has 16 alphanumerical values, क्योंकि इसमें 16 alphanumeric values होती हैं. For example लेते हैं. The representation of hexadecimal number would look like A13 base 16. Table below of binary, decimal, octal and hexadecimal number systems. Conversion between number system. हम नंबर सिस्टम से कैसे कन्वर्ट करते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में. फर्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी. हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर 59 बेस 10 टू बाइनरी नंबर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. 59 बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं. पहला, डेसिमल नंबर इज रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 2. डेसिमल नंबर को हम रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर नोट करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है. Write all the remainders from bottom to top to get result in the binary equivalent of decimal number. फिर हम बॉटम से लेकर टॉप तक सारे नंबर अपने लिख देंगे लेफ्ट टू राइट, जिससे हमारा बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा हमारे बाइनरी में. नेक्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी. हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टिंग 110010 बाइनरी टू अ डेसिमल. राइट कंप्लीट बाइनरी कोड. हम पहले पूरा बाइनरी कोड लिखेंगे, फिर एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे. मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद द पोजीशन वैल्यू टू द बेस वैल्यू विच इज 2. उसके बाद हम हर नंबर को 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल कीप इंक्रीजिंग द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन वी विल ऐड द नंबर्स. इस तरीके से हमें बाइनरी से डेसिमल नंबर मिल जाएगा. डेसिमल टू ऑक्टल. हम डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेट्स सी 298 जो डेसिमल में है हम उसे ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे. द डेसिमल नंबर इज रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 8. हम डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा. उसके बाद हम बॉटम से लेकर टॉप तक लेफ्ट टू राइट में अपना नंबर लिख देंगे जो कि हमारा ऑक्टल नंबर होगा. ऑक्टल टू डेसिमल. हम ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. Convert 157 in octal binary base system to a decimal number. पहले हम अपना पूरा कोड लिखेंगे, उसके बाद हम हर कोड को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और हम अपनी 8 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे राइट से लेफ्ट तक 1 by 1. उसके बाद हम सबको सम करके अपना नंबर बना देंगे. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू अ हेक्साडेसिमल नंबर. Let's convert 537 decimal number into a hexadecimal. हम पहले अपना नंबर लिखेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा. उसके बाद हम अपनी जो डिजिट्स हैं रिमाइंडर की उसको 2 से बॉटम से लेकर टॉप तक लिख देंगे लेफ्ट टू राइट. इस तरीके से हमारा डेसिमल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा.
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीजेस इन पावर्स ऑफ 16। हेक्साडेसिमल में इंक्रीज होती है वैल्यू पावर ऑफ 16 में। तो हम अपनी डिजिट्स लिखेंगे पहले, जैसे हमारी है A4C। ए का मतलब 10 होता है, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 और उसके बाद इन सबको सम कर देंगे। इस तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनरी अर्थमेटिक, सिंस कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑपरेट करता है बाइनरी लैंग्वेज की मदद से, जो कि जीरोज एंड वन है। इनको हम कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको प्रोसेस करने के लिए। और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसकी मदद से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं? लेट्स लुक एट सम। स्टार्ट फ्रॉम राइट, हम राइट से स्टार्ट करते हैं और कैरी फॉरवर्ड हम आगे ले जाते हैं। एग्जाम्पल 1, वी आर एडिंग 1001 to 111, and then in next example we are adding 1010 to 1000। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? फर्स्ट हम राइट से स्टार्ट करेंगे, हम बोरो करेंगे जब भी नेसेसरी होगा, फिर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और हम कॉलम वाइज अपना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करेंगे राइट से, मल्टीप्लाई करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे नंबर, फिर हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, शिफ्ट एंड ऐड करेंगे और इस तरीके से अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। बाइनरी डिवीजन, dividing number similar dividing decimal number but only with zeros and one. Here are some key rules to follow. हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करके रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद हम आगे आगे डिजिट्स पे आते जाएंगे और ऐसा ही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। यू कैन लुक एट द एग्जांपल्स बिलो। In example 1 we are dividing 1101 by 10. In example 2 we are dividing 110101 to 111. Encoding schemes, कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं हमें पता है बाइनरी लैंग्वेज यूज करके, और हम हर कीबोर्ड का एक कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, जिसकी मदद से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में अपने लेटर्स को और कंप्यूटर को भेज देते हैं। कुछ कंप्यूटर कोड्स ASCII की फॉर्म में है, वो हमें नीचे टेबल में दिए गए हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स, डेसिमल, कैरेक्टर अगेन, डेसिमल, कैरेक्टर एंड डेसिमल वैल्यूज। यूनिकोड, यूनिकोड इज अ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड एनकोडिंग सिस्टम, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है जिसकी मदद से एक यूनिक कोड डिफाइन किया गया है हर लेटर, डिजिट और सिंबल के लिए। Unlike ASCII, which only includes basic English character, Unicode encompasses computer from writing system worldwide. यूनिकोड में सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जितनी भी राइटिंग सिस्टम है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड उससे। यूनिकोड कैन यूज 8 and 32 बिट्स पर कैरेक्टर, ये हर कैरेक्टर के लिए 8 या फिर 32 बिट्स कैरेक्टर के लिए यूज करता है। जो कॉमन एनकोडिंग है UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। समरी, the low level language, the high level language, the 4GL and the 5G are categories of computer languages. Low level languages are those which are either in binary form or very close to it. HLL are very close to human language and easy to read and write. Some popular 4GLs and PLSQL, कुछ पॉपुलर 4GL के एग्जाम्पल है हमारे, जैसे कि FoxPro, Stata and Oracle. Software system is defined as collection of software programs that have instructions about how, when and what to computer to do. It's exercise time. Choose the correct answer. Which of the following languages contains mnemonics? Option D. Both the machine and assembly languages contains it. A computer understands only binary numbers. Which of the following language is close to human language? Option A. HLL. Binary number system uses only 2 digits. Which of the following is a spreadsheet program? Option C. 11E. Fill in the blanks using given words.
A dash digit in the binary system is known as dash. A binary. A dash converts high-level language into machine language. Compiler. System software is developed to dash and dash the computer hardware, manage and control. Every digit in dash number system has positional values in power of 8. Octal. Dash is an internationally recognized encoding standard that assigns a unique code to each letter, digit, or symbol used in a language of the world. Unicode. State true or false. Hardware is defined as a collection of computer programs. False. An interpreter is a language processor. True. An assembler translates assembly language codes into machine language. True. The number used in octal number system are 1 to 7. False. The decimal number system has just two unique digits 0 and 1. False. Here the exercise ends. Do practice and revise it.